we are going to start with that. Okay. So we're going to start with this electromagnetic theory. And whenever we are talking about an electric field, there is always a magnetic field which is being created, and if you have a magnetic field, you can always get back the electric field from there. Okay, so electricity and magnetism are more or less connected, and this is something which you have already learned in your lower classes. But the thing is, when we actually want to analyze it mathematically, we have to realize something that uh, the importance of vectors, okay, and how you represent these quantities mathematically. Okay, there are certain steps and tricks that we should know. For example, we are talking about something like, let's say, the direction, the way electric field and the magnetic field are in a perpendicular direction to each other. So having said that, we also need to represent them mathematically, okay, and also we need to connect the electric field and the magnetic field. For example, you might already know about this. When you write it down as mu naught, this is the permeability of free space, and this is more or less connected with the magnetic field. And when we write down something like epsilon naught, we know it is the permittivity of free space, and both of them are connected to each other. And if we just write down 1 divided by root over of mu naught and epsilon naught, you're basically going to get something which you call as the speed of light. So light is an electromagnetic wave. That means it will have both the electric field and the magnetic field, and they will actually vibrate in a direction perpendicular to each other. So this is very important, okay, this idea or concept. Okay, so we are going to just have a look into it. Okay, just a moment. I think Shivam is calling. Hello. Yeah, Shivam, bolo. Okay. So when we actually going to talk about the electric and magnetic field, and we want to combine them, we can just talk about mu naught and epsilon naught combining, and we see that this is a field. Now let's say, for example, I am going to just just represent this in terms of the x, y, and the z axis. And we do understand that all these three axes are more or less perpendicular to each other. So for example, if we want to represent the electric field, we can just write it like this. Okay, we can actually have a representation something like this. So this is our electric field. Okay, and at the same time we can also represent the magnetic field, and this magnetic field will be in a direction which is actually perpendicular to the electric field. This is something which you might have seen already in your lower classes. Okay, but then how do I represent them mathematically is something which we are going to do. Maxwell's equation is also not something which is new to you, so we are going to analyze these. Okay, we are going to analyze these, and that's the aim of this particular unit. Okay. Yeah, okay, just give me a moment. I think someone is saying something. मेरा इसका voice बहुत low है. Yeah. Yes, sir, मैं Yeah, Jatin, just a moment. हाँ. सर थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दोगे तो इंग्लिश थोड़ी समझ में नहीं आती ज्यादा. मेरा इसका voice बहुत low है. हाँ जतिन बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मैं ये कह रहे थे थोड़ा बहुत हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दोगे, ज्यादा इंग्लिश समझ अच्छा, में नहीं. ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, कोई इशू नहीं. ओके, सो क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक एक समझ लो लाइट की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है कि इसमें बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहती है और मैग्नेटिक फील्ड भी रहती है. ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेटली देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो इस तरफ है, अपने एक्स एक्सिस की तरफ. चलो ये पकड़ लो, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है. ठीक है, तो अगर हम लोग वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, तो वी कैन से दैट अलोंग द जेड एक्सिस अपना रहेगा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेव्स, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. अगर वो लोग वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तब ये जो चीज़ है ये हम लोग बेसिकली किताबों में पढ़ते हैं, बट उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, और इस बारे में हम लोग इस यूनिट में अच्छी तरह जानेंगे. पहली बात तो ये है कि ये होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों कनेक्टेड होते हैं. अभी मैथमेटिकली कौन से रिलेशन है जो इनको कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बाय मैक्सवेल्स इक्वेशन.
सो मैक्सवेल ने जब मैक्सवेल का इतना वो नहीं था कि हम लोग बोले कि ही हैज गैदर्ड ऑल द इक्वेशन, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि ये जो चार इक्वेशन है, ये चारों इक्वेशन मिलके मेरे को पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को बताएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कनेक्टेड हैं, ये चारों इक्वेशन मिलके। वहाँ पे एक करेक्शन आया था जो हम लोग बोलते हैं एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस यूनिट पे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, इफ इट फ्लोज, वी नीड टू नो अबाउट इट्स प्रोपोगेटिंग मीडियम। मतलब ये कहाँ जा रहा है, इज इट इन अ कंडक्टिंग मीडियम, इज इट इन अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अभी दोनों का बहुत फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज जब हम लोग कंडक्टिंग मीडियम की बात करते हैं और वहां पे हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, वी नो दैट कंडक्टिंग मीडियम विल हैव एन इफेक्ट ऑन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात करते हैं, तो ये जो वेव का बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर होता है, वो अलग होता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, अभी हम लोगों ने ये पूरा का पूरा आप लोगों ने सुना ही होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वी हैव टू नो अबाउट समथिंग व्हिच वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर हम लोग सन की बात करें, इट्स गोइंग टू गिव आउट ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन, ओके। एंड इफ वी जस्ट वांट टू सेपरेट देम आउट, हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। वी कैन द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट वी हैव इज विजिबल। ठीक है, अभी विजिबल से वेवलेंथ कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन से वी हैव गॉट आईआर रेडिएशन, और वी ऑल्सो हैव गॉट इंफ्रारेड रेडिएशन आ गया, यूबी आ गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमें पता है कि गामा होता है, गामा रेडिएशंस होते हैं, राइट। उसके बाद समझ लो माइक्रोवेव होते हैं, और इन सब का जो एप्लीकेशन होता है वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है उनमें कितनी एनर्जी है, राइट। सो ये भी आप लोगों को पता है, मैं आज सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ समझाने के लिए। एच न्यू, तो अगर हम लोगों को एनर्जी नापनी है तो वी हैव टू जस्ट टेक दिस रिलेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, और अगर हम लोग इसको वेवलेंथ के हिसाब से लिखते हैं तो वी नो इट इज एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखनी है। दिस इम्प्लाइज दैट द फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, इट इज़ ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, एंड एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली रिलेटेड, दैट मीन्स एनर्जी भी कम है। सो अगर हम लोग किसी वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसी वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी सी दैट दिस वेवलेंथ इज मोर, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, राइट, दिस वेवलेंथ इज मोर, और ये वेवलेंथ कम है। मतलब ये जो है इसकी एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज वेवलेंथ कम है, इसकी एनर्जी कम है बिकॉज वेवलेंथ ज़्यादा है। अभी मान लो मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, और मेरे को इसको जलाना है। तो अगर मेरे को इसको जलाना है मतलब आई हैव टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इट, आई हैव टू गिव हाई एनर्जी टू इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतनी एनर्जी मैं कहाँ से लाऊंगा, दैट मीन्स आई हैव टू सिलेक्ट अ वेव, ओके, विच विल हैव हाई एनर्जी। तो अगर मैं विजिबल लाइट की बात करूं एंड आई वांट टू बर्न इट, इट प्रोबेबली वोंट बर्न, बिकॉज विजिबल लाइट अगर बर्न करने लगा तो हम लोग कोई एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो आईआर रेडिएशन जो होता है ना, इसका वेवलेंथ ये कम होता है, तो वेवलेंथ कम होता है मतलब एनर्जी ज़्यादा होती है, और उतनी एनर्जी काफ़ी है एक पेपर को जलाने के लिए। हालांकि दूसरे कंडीशंस भी हैं, बट आयर रेडिएशन हैज़ गॉट लेसर वेवलेंथ कंपेयर टू विजिबल लाइट, इसके लिए वो पेपर को जला पाता है। सो ये बेसिक आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो अगर हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, विजिबल, आईआर, यूवी, गामा, माइक्रोवेव, every each of these electromagnetic spectrum component will both have an electric field as well as a magnetic field, right? And if we really want to understand कि एक मैग्नेटिक फील्ड का कितना इफेक्ट होगा, अगर अलग से मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दूँ तो उसका क्या इफेक्ट होगा इस वेव पे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर सिलेबस ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो हमारा जो यूनिट 2 है यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, इट्स बेसिकली डीलिंग विथ मैक्सवेल्स इक्वेशन। अभी मैक्सवेल्स इक्वेशन में बहुत कुछ है जानने को, बट इस वक्त हम लोग क्या जानेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, सो इस वक्त हम लोग जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, हाउ डज इट प्रोपोगेट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीडियम। ओके, सो दैट्स आवर एम। ठीक है,
सो अभी हम लोग इस बारे में जानेंगे एंड दैट विल बी द एम फॉर टुडेज क्लास. आज एक देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल प्रोसीड. ओके सो ओके लेट मी जस्ट टेक दिस एज अ रफ वर्क. ये जस्ट समझाने के लिए बोला था. बेसिकली इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, राइट. सो द टॉपिक इज दिस राइट नाउ. ओके, प्रोपगेशन of EM waves in isotropic. So there are certain words which might have already come across. Okay, we're just going to look into it, and I guess you people should not worry about the notes and all. I will try to teach you in such a way that आप लोग जब लिखोगे एग्जाम में तो एटलीस्ट आप लोग के पास कंटेंट रेडी हो लिखने के लिए. बट देन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज मैं क्लास शुरू करने से पहले ये बोल देता हूँ कि आई डोंट प्रेफर गिविंग यू नोट्स बनाया. मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा या नोट दे दूंगा और आप लोग उससे पढ़ लोगे. आई थिंक यू आर गोइंग टू नॉट लर्न मच फ्रॉम देयर. ओके, अगर आप लोग खुद लिखोगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू, ओके, टू रिमेंबर थिंग्स, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आप लोग एक फुल टाइम कोर्स कर रहे हो तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर नोट्स प्रॉपर्ली. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक है, अभी पहले हम लोग डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं. प्रोपगेशन मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि हाउ डज इट मूव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इट कैन बी एनीथिंग, विजिबल, आईआर, यूवी, गामा, माइक्रोवेव. यू हैव टू जस्ट हैव अ जनरल रिलेशन टू रिप्रेजेंट देम, एंड दैट वी हैव इन आइसोट्रोपिक. अभी सवाल उठता है कि आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है. नाउ इमेजिन यू आर बेसिकली हैविंग अ सिलेंडर. ओके, आई एम टेकिंग अ फिजिकल एग्जांपल हियर, एंड यू हैव सम गैस इनसाइड इट. ठीक है, अपने पास कुछ गैस है इसके अंदर. नाउ इफ यू आर हियर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इफ यू मेजर द डेंसिटी in any direction, let's say you are measuring the density along this direction or along this direction or along this direction, in all these directions the density will remain the same because the gas molecules are equally distributed. This is called an isotropic medium. मतलब हम लोग कुछ भी प्रॉपर्टी लेंगे ना, it will be equally distributed or it will be same in all the direction. That is actually called an isotropic medium. ठीक है, so this is important. सो अगर हम लोग इसके बारे में एक लिखें, ओके, व्हाट वी कैन डू इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ओके, सो डाइलेक्ट्रिक का मतलब आप लोगों को पता होगा, लाइक इन जनरल राइट नाउ आई एम टॉकिंग इट्स इन टर्म्स ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम. ओके, अभी नॉन कंडक्टिंग क्यों? बिकॉज अगर आप लोग समझ लो एक कैपेसिटर लेते हो, ठीक है, and if you have gone through the theory, if you look into the tube of the capacitor, within this there is some dielectric material. Now this can be paper, which is a very common dielectric material, and in general at room temperature these are insulators. Okay, dielectric और insulator एक नहीं होता वैसे, but right now I'm just saying that they don't conduct electricity. Okay, so this is a dielectric medium. If you take air, it's also a dielectric medium. If you apply very high energy, okay, कुछ भी एक मीडियम में अगर बहुत सारा एनर्जी डाल दोगे, then that medium gets disturbed. तो डायलेक्ट्रिक मीडियम का क्या होता है, इनका जो फील्ड होता है ना, ये डायरेक्शनल हो जाता है. ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग एंड डायलेक्ट्रिक मीडियम. बट उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. इस वक्त डायलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम. ठीक है, सो फॉर दिस व्हाट यू कैन स्टार्ट विद इज अ नॉन. और आप लोगों को कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू आर नॉट गेटिंग इट राइट, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू टेल मी. ठीक है, बिकॉज एज जतिन टोल्ड मी इन हिंदी होगा तो ईजी रहेगा, एंड आई हैव नो इश्यूज विद दैट. ठीक है, आराम से पढ़ा सकते हैं. आई वाज टीचिंग इन एनआईटी बिफोर, सो वहाँ पे द स्टूडेंट्स वेर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, सो देयर वर स्टूडेंट्स उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी अच्छे से, so I has to take it in English, so that's why I prefer doing that. Okay, but there is no issues. Apart from that, अगर आप लोगों को और कोई issue है, समझ में नहीं आ रहा है and all that, I will do it. But don't ask notes from me because that is something which I don't prefer. Okay, I'm writing it here. It means that you should make your own notes. That's very important. So a non-conducting medium whose properties, okay, अभी property कौन सी property हो सकती है, जैसे like thermal conductivity. Thermal conductivity. So these things are such that you might have already come across. Okay, thermal conductivity you might have studied in your lower classes. Uske baad we have got something which we call as permittivity. So there are two things. One is permittivity, one is permeability. Whenever you want to measure the strength of an electric field or a magnetic field, you are actually concentrating on something which we call as lines of force.
अगर लाइन्स ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा है और करीब करीब है, मतलब फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, राइट. सो अगर हम लोग परमिटिविटी की बात करते हैं एंड वी हैव अ मीडियम, वी हैव टू सी दैट ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है ये क्या ये मीडियम क्रॉस करेगा. मतलब अगर इस साइड में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होती है, क्या इस साइड में भी हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी या बिकॉज ऑफ दिस ये घट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा परमिटिविटी पे, कितना परमिट करता है लाइन्स ऑफ फोर्स को क्रॉस करना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी. तो ये बेसिक लॉजिक है. अपार्ट फ्रॉम दैट परमिएबिलिटी की बात भी कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं जैसे रेजिस्टेंस etc. Since we are talking about electromagnetic waves, so we are just going to concentrate on the electrical properties. So thermal conductivity हो गया, permittivity हो गया, resistance हो गया, ठीक है. और हम बात कर रहे हैं आइसोट्रॉपिक मीडियम की. सो ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम whose properties are same in all direction. तो जैसे कि मैंने वो गैस सिलेंडर वाला एग्जांपल बताया, are same in all direction is called isotropic dielectric medium. So it's very important. Okay, first we should get the definition and then only we can actually proceed with the mathematical explanation. Okay? Now let's just go with a mathematical idea. That means we have to start with Maxwell's equation. हालांकि हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट इस वक्त हम लोग जस्ट नोट डाउन कर लेते हैं कि एग्जैक्टली मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है. सो वी हैव फ्रॉम, आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट रिवाइज इट. वी हैव फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, ओके, क्या क्या है हमारे पास. द फर्स्ट थिंग इज, यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, the gradient delta function, right? So if you remember, delta is I cap del x. हम एक 3 dimensional system consider करते हैं. That means there will be changes in electric field or magnetic field or whatever in both all the 3 directions. This is del x, del y plus z cap del z. ठीक है, ये हमारा डेल्टा फंक्शन. सो वी टेक डेल्टा डॉट डी बार इज इक्वल टू 0. We know that this is a vector, but sometimes even if you don't put the sign of vector, we know it's a vector. Okay, we're taking a dot product with a vector, and then we have it for the magnetic field. So you know this is D, which is actually nothing but representing the electric field. This is B, which is representing the magnetic field, and then we have got del cross H bar. Again, this is representing the intensity of the magnetic field, del cross H bar. They are all connected. We are going to slowly revise all the formulas. J plus del D bar del T. So I hope you remember that this was actually the correction which was made by Maxwell. तो ये हमारा आ जाता है एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स सर्किटल लॉ. ठीक है, सो करेक्शन रहता है यहाँ पे, which is actually done by Maxwell, and then he has included these 4 equations together. और उसके बाद ये बोला जाता है कि ये चारों इक्वेशंस ही पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. सो डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बार डिवाइडेड बाय डेल टी. सो अपने पास ये 4 इक्वेशंस है. दिस इज योर यू नो गॉसेस लॉ इन, ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस. ठीक है, ये हो गया गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. सब रिवाइज कर लो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन इट और यू डोंट रिमेंबर. देन दिस इज अगेन गॉसेस लॉ. दिस इज इन मैग्नेटोस्टैटिक्स. ठीक है, ये जो करेक्शन था दिस इज एम्पेयर्स लॉ. विल जस्ट राइट इट डाउन एज एम्पेयर्स लॉ. और ये हो गया अपना फैराडेज लॉ. सो यू नो आई रियली डोंट नो हाउ मच यू रिमेंबर दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट बेसिक. पहले से शुरू करते हैं फैराडेज लॉ. ठीक है, सो ये हमारा 4 है और इन चारों से हम लोग बहुत कुछ अभी निकालने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 क्लासेस. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
Now what we are doing here is we are actually discussing a non-conducting medium. मतलब we are talking about a dielectric medium. So कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अलग होंगी, कुछ कुछ चीज़ें और ज़ीरो होंगी and so on. So just list them down, okay? So what I'm going to do is this for a non-conducting medium. अभी कंडक्टिंग मीडियम और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में हर एक कंपोनेंट तो सेम नहीं हो सकता, सो हम लोग उन दोनों को अलग अलग लेंगे. तो आज हम लोग नॉन कंडक्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं. सो लेट मी जस्ट लिस्ट डाउन सम बेसिक थिंग्स. सो कुछ चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा. सिग्मा क्या होता है? कंडक्टिविटी. अगर आप लोगों को याद नहीं है, सो वी यूजुअली रिप्रेजेंटेड कंडक्टिविटी विद सिग्मा. ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो. क्यों? बिकॉज डाइलेक्ट्रिक है, इट्स नॉन कंडक्टिंग, देयर विल बी एनी कंडक्टिविटी, तो दिस सिग्मा विल बी ज़ीरो. सो देयरफॉर we know that the current density J is equal to sigma into E. अब ये नॉन कंडक्टिंग है तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा? सिग्मा इज जीरो ना, तो करंट डेंसिटी विल बी जीरो. हो गया अपना. ठीक है, एंड दीज आर वेक्टर्स, प्लीज डोंट मिस आउट द साइन, आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन वी हैव गॉट रो, एंड रो आई होप यू रिमेंबर इज द चार्ज डेंसिटी. और चार्ज डेंसिटी मतलब दिस विल ऑल्सो बी जीरो. चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं वहाँ पे बिकॉज इट्स नॉन कंडक्टिंग, सो दैट मीन्स इट इज जीरो. चार्ज डेंसिटी इज जीरो. एंड if you remember the relation between D, which is the dielectric field that we are talking about, is equal to epsilon into the applied electric field E bar. ठीक है, ये हो गया. And we also have a relation between B, the magnetic field, and the magnetic field intensity. B is equal to mu into H. So these are all basic relations that we must remember in order to understand this unit. That's very important. ठीक है, और हम लोगों ने इस पे नॉन कंडक्टिंग मीडियम के बारे में बता दिया, डिफाइन कर दिया. So I'll just underline this. I think this is very important. ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के बारे में. So once we have this for a non-conducting medium, that means we can actually write it down. Okay, हम लोग Maxwell's equation for non-conducting medium लिख सकते हैं. Therefore, Maxwell's equation for non-conducting, क्या आपको पूरा लिखना, medium. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नॉन कंडक्टिंग मीडियम का कंडीशन है वो हम लोग डाल सकते हैं. सो यू नो D कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन इनटू E. सो वी कैन आल्सो राइट इट डाउन एज डेल डॉट E या डेल डॉट D भी रख सकते हैं. डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, बट देन इट इज बेटर टू नो ऑल द फॉर्म्स. सो डेल डॉट E बार इज इक्वल टू जीरो. इनफैक्ट यहाँ पे भी हम लोग डेल डॉट E बार लिख सकते हैं. इट्स नॉट रॉन्ग, ओके, इवन फॉर कंडक्टिंग ऑल्सो. सो इसको चलो मार्क कर देते हैं. लेट्स से दिस इज 1, एंड देन वी कैन एक्चुअली हैव इट इन टर्म्स ऑफ H. सो दिस इज डेल डॉट H bar is equal to 0. This is number 2. If you are planning to give any kind of entrance exam, these things are very important. Okay, ये एकदम बेसिक्स पे आता है तो बहुत ज़रूरी होता है ये सब. Then we have got del bar and cross H bar, right? B बार की जगह H बार की जगह H बार ही रखते हैं. एंड देन J is 0 से J 0 हो जाता है. सो फर्स्ट पार्ट इज 0, सो इट विल बी जस्ट del D del T, और यू कैन राइट डाउन del epsilon E ऑल्सो, डजेंट मैटर, सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई del T. ठीक है, एंड देन वी हैव गॉट डेल्टा बार क्रॉस E बार. तो E बार लिखते हैं is equal to माइनस, यहाँ पे तो कुछ चेंजेस है नहीं, del T. We can write it down B also, doesn't matter, but then B is equal to mu H, so हम लोग mu H भी लिख सकते हैं. ठीक है, so different forms, but then it presents the same thing. So the major change is here, J is 0, right? Apart from that, this more or less remains the same. अभी क्या है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रिलेशंस. चेक दिस.
ये गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व, दिस इज अ सेपरेट रिलेशन। यहाँ पे गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मतलब जहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। बट इफ यू वांट टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू यूज दीज टू रिलेशन। सो यहाँ पे देखो ये वाला मेरा मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये दोनों है इन दोनों का कनेक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट करना है वी आर गोइंग टू गेट दिस, राइट। एंड आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस, ओके। आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम लोग कोई भी एक इक्वेशन लिखते हैं, लेट्स से y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसका मतलब ये है अपना जो x है ना इस साइड, इट इज इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ y। सो y मेरा डिपेंडेंट हो जाता है। सो यहाँ पे भी अब अगर हम लोग देखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग अप्लाई करेंगे ना, बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट अ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये रिलेशन। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये रिलेशन देखते हैं हम लोग, अगर मैग्नेटिक फील्ड देंगे वी आर गोइंग टू गेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू नो दीज टू आर मोर और लेस कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, एक मैग्नेटिक फील्ड मिला, मैग्नेटिक फील्ड दिया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। सो ये कंट्रोल करेंगे तो ये चेंज होगा, ओके। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि दोनों ही अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक ही इक्वेशन लेते हैं ना, दोनों क्यों लेना है। बट देयर वेरिएशंस आर डिफरेंट। इफ आई गिव सम काइंड ऑफ करंट I will get a magnetic field. On the other hand, if I am giving magnetic field, I am changing it, the current will change, but it may not be the same. Okay? So these are two different relations that we have. One is the Ampere's law and the other one is the Faraday's law. So we have to check both of them. अभी क्या होता है हमारे पास ये H है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, वी कॉल इट एज द मैग्नेटिक वेक्टर। सो ये H जो है ये कैसे प्रोपोगेट करेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, वी हैव टू एनालाइज इट। एंड वी कैन नॉट जस्ट एनालाइज इट थियोरेटिकली, ऐसा नहीं खाली सेंटेंस लिख के एनालाइज करेंगे, वी हैव टू एक्सप्लेन इट, ओके, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। सो अभी हम लोग ये करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस, वी आर गोइंग टू एनालाइज इट एंड वी आर गोइंग टू से हाउ डज दिस मैग्नेटिक वेक्टर प्रोपोगेट इन द मीडियम, and then we are going to take this and we are going to say how does this electric field propagate in the medium, ठीक है। तो अभी हम लोग ये लेंगे। so the next topic, this is actually just a introductory idea on how does electromagnetic waves propagate in isotropic dielectric medium. We already have the equations, now we are going to proceed with some derivations, ठीक है। so the topic is equation of propagation of magnetic vector. So it's not like mathematical physics that I would be able to ask you questions and be solving problems. So you have to really concentrate here. I don't prefer taking more than one class at a time for a particular topic because it becomes very difficult to remember. आप लोगों को जब याद नहीं रहेगा, रिटेन नहीं कर पाओगे तो ऐसे टॉपिक पढ़ा के फ़ायदा क्या है। सो जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ योर मैग्नेटिक वेक्टर H, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको डिराइव करते हैं, लेट्स सी हाउ वी एक्चुअली कैन फाइंड आउट द इक्वेशन। सो वी डू हैव रिलेशन 3 वेयर इट इज कनेक्शन बिटवीन H एंड D, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कर्ल लेंगे दोनों साइड पे। सो टेकिंग कर्ल on both sides. So we have already marked the equation, if you remember. So if you're writing down your notes, you already know what is equation 3. Last slide में था, I hope. Okay. So equation 3 मतलब ये कर्ल लेंगे. So कर्ल मतलब you take delta cross of whatever you have, right? So that's basically called a curl. So कर्ल डाइवर्जेंस वगैरह ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने अंडर ग्रेजुएशन में. That is basically very standard in mathematical physics, even for the preliminary courses. So if I take this would be del cross H, तीसरे का ले रहे हैं, is equal to del cross, अभी वो था मेरा del D del T, so I can just take epsilon
into del E del T. ठीक है. So what we can do here is we can expand this and we have to use the laws of vector. So vector में order कभी change नहीं होता, we have to take it in the same order, right? So if you take a cross b cross c, you can take it as a into b dot c minus a dot c into b, right? So what we can do is we can write it down in this way, vectors का del bar and then within bracket it would be del bar dot h bar. मतलब मैंने पहले ये इसके साथ इसको कर लिया, इसको बाहर रख लिया, माइनस एंड देन इसको इसको ले लिया, इसको बाहर रख दिया. ठीक है. सो आई होप यू रिमेंबर दिस रिजल्ट. दिस इज ऑल्सो देयर. यू कैन इनफैक्ट सॉल्व इट ऑल्सो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. इंटू एच is equal to, I'll keep this side the same, epsilon, okay, and then we can actually have it as del t. यहाँ से दिखेगा, वहाँ से दिखेगा? अच्छा, यहाँ से दिखेगा ना. ओके, श्योर. ओके, सो योर फ्रेंड शिवम इज हियर. ओके, सो एप्सिलॉन हो गया. फिर डेल टी ऑफ, वी कैन जस्ट टेक इट टू बी डेल बार क्रॉस ई बार. ठीक है. अभी मेरे पास ये रिलेशन है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम. ठीक है. तो अगर हम लोग नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहे हैं, दैट मींस डेल्टा डॉट एच इज इक्वल टू 0. ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं. एंड वी हैव आल्सो सीन अ रिलेशन फॉर डेल्टा क्रॉस ई फ्रॉम 4, फ्रॉम रिलेशन 4. ठीक है. सो दैट मीन्स अगर मैं इसको लाइक सही तरीके से लिखूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, यूजिंग 2 and 4 in 5. सो हम लोगों को 5 तो लिखना पड़ेगा. लेट मी जस्ट मार्क दिस एज 5. 2 से अपनों को पता है ये 0 हो जाता है और देन दिस इज द रिलेशन, राइट? सो दिस वुड बी 0 माइनस डेल्टा डॉट डेल्टा इज डेल्टा स्क्वायर and you know it's a vector, this is also a vector. Take a dot product, you are going to get a scalar. So that means अगर मैं डेल्टा को ऑलरेडी हम लोगों को पता है, अगर डेल्टा स्क्वायर लिखते हैं, so this would be डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर. डेल्टा डॉट डेल्टा हम लोग ले सकते हैं, बोथ आर वेक्टर्स एंड देन इट विल बिकम अ स्केलर. सो दिस इज डेल्टा स्क्वायर एच इज इक्वल टू, and then I can take it to be epsilon and then this is delta delta t. और हमारा जो फोर्थ इक्वेशन था वो था ये, it is minus del del t of mu h. Okay, so if I do it here I am going to get it to be minus of del t of mu of h. हो गया. That means we can simplify things here further. Here mu constant है, so we can take it out. Epsilon is already there, so it's there. And then I can take the minus sign here. And I have got a double differential here, so it will be del square del t square of h. ठीक है. So ये मेरा क्या हो रहा है? I'm getting a second order differential equation. So आप लोगों को differential equation already कर चुके हो काफ़ी बार, so you already know about it. So it is 0 minus this, so there is a minus sign, this will cancel with this minus sign. So I can just simply write it down as del square h, right, minus mu epsilon del square del t square of h is equal to 0. ठीक है. अभी इसका एक स्लाइट मॉडिफिकेशन है जो हम लोग बाद में समझेंगे, प्रोबेबली नॉट टुडे, बट देन ये आई थिंक ईजी होगा समझने के लिए. डेल स्क्वायर एच माइनस ये जो म्यू एप्सिलॉन है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई वी. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज यू माइट हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट, बट आई विल जस्ट ट्राई टू रिफ्रेश दिस. डेल टी स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 0. सो हम लोगों को ये रिलेशन याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हेन यू आर डिराइविंग, एंड देन if I ask you a question like what will be the question for exam now, और मार्क कितना रहेगा, चलो ये डिस्कस कर लेते हैं अभी. So this is the derivation and this is the result that we have. Question would be derive the equation of propagation of the magnetic vector H. This is the equation, right? अभी हम लोग इसको equation क्यों बता रहे हैं? Because you know डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, ठीक है, आप लोग x डायरेक्शन में मूव करोगे, y डायरेक्शन में मूव करोगे, z डायरेक्शन में मूव करोगे. बेस्ड ऑन दिस वी विल हैव डिफरेंट रिलेशन अलोंग x, y एंड z.
ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस में भी हो सकता है। तो यू आर गोइंग टू गेट अ रिलेशन विच इज जनरल। सो ये मेरा जनरल रिलेशन है। अगर मेरे को एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए सॉल्व करना है, देन आई कैन टेक दिस टू बी आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, उसके बाद स्क्वायर करो, ये रिलेशन लगाओ, सॉल्व करो। ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, x डायरेक्शन में नहीं है, y डायरेक्शन में भी नहीं है। दैट मीन्स दिस रिलेशन विल बी जस्ट डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, मतलब हम लोग सिर्फ z डायरेक्शन की तरफ डबल डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ यू एनालाइज दिस। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर h बार। समझ में आ रहा है? ओके। सो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोगों को हमेशा अभी जब हायर क्लासेस में पहुंच गए हैं, पीजी में कर रहे हैं, पीजी क्लासेस कर रहे हैं, हम लोग जस्ट एक नॉर्मल सा रिलेशन नहीं ले सकते कि जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ एक 1 डायमेंशनल स्पेस में और 2 डायमेंशनल स्पेस में एक लाइन एंड दैट्स इट। नो, when we go into the real world we have to consider all the 3 dimension, and that's why when we are talking about electromagnetic waves हमें ये डेल्टा फंक्शन बहुत हेल्प करता है। अंडर सर्टेन कंडीशन ये एक डायरेक्शन में हो सकता है, बट इन जनरल ऐसा कभी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी सो दीज डायरेक्शंस आर ऑलवेज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, अभी द क्वेश्चन इज ये v का मतलब क्या है। अभी देखो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा ये पहले, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन इन एज नोट में भी, ठीक है। सो अगर आप लोगों को याद है, हम लोग बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट और म्यू और एप्सिलॉन कैसे कनेक्टेड है। सो व्हाट हैपेंस इज स्पीड ऑफ लाइट c, ओके, यू माइट हैव डन इट दिस वन ऑलरेडी, c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये नॉट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बिकॉज दिस इज इन फ्री स्पेस। बिकॉज ये तो स्पीड ऑफ लाइट की बात हम लोग करते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि अप्रॉक्सीमेट है, मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट है, 2.998 समथिंग है। ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, ये वैक्यूम में है। तो ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है ना, परमिटिविटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दोनों का दोनों वैक्यूम में है, राइट। हम लोग वैक्यूम की बात करें इसलिए इसको सी में रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। रियल वर्ल्ड में ऐसा थोड़ी है कि हमेशा वैक्यूम रहेगा। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई मीडियम हो, वहां से जाए, तो उसको हम लोग सी नहीं, हम लोग वी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और उसके बाद उस पर्टिकुलर स्पेस का जो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी होगा वो म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा और एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ना कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए अगर हम लोग इन दोनों का रिलेशन देखें, म्यू एप्सिलॉन, ये रिटन वी कैन राइट इट डाउन एज 1 डिवाइडेड बाय v, राइट, और मे बी v स्क्वायर, राइट। यहाँ पे रूट तो नहीं है तो v स्क्वायर हो जाएगा ये, correct. So this will be v square. So this is why it is important, and this is something which you have already studied. So v represents the velocity, that is very important, ठीक है। in a similar way, अभी ये मैंने क्या निकाला, मैग्नेटिक वेक्टर का प्रोपोगेशन वेव निकाला। in a similar way we can also find out the equation of propagation for an electric field. So इसमें क्या करना है, हमें ये लेना है, okay, and let me just take it to the new page. अभी मेरे को निकालना है इक्वेशन ऑफ प्रोपगेशन, ओके, और फॉर ई और इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर ई बार सेम ही है, कॉन्ट्ररी है, राइट, एक ही चीज़ है, वही करना है। सो क्या करना है हमें, जस्ट डेल बार क्रॉस ई ले लिया इस साइड में, और अपना उस साइड में हो गया डेल बार क्रॉस, ये तो म्यू है, एक माइनस है इधर, राइट, एंड दिस वुड बी डेल एच डेल टी, या डेल बी डेल टी भी लिख सकते हैं, बट वी विल राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ म्यू। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई समटाइम्स आई एम टेकिंग ओनली बी एंड व्हाई आई एम टेकिंग आउट म्यू आउटसाइड हियर, बिकॉज अगर इसमें म्यू आउटसाइड ले लेते हैं ना, वी हैव अ चांस दैट वी कैन कंबाइन इट विद एप्सिलॉन एंड से दैट इट्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। अगर मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, लेट्स से सिंपलेस्ट ऑफ रिलेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मेरे को एक सिस्टम डिफाइन करना है। यू सी, वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी मूवमेंट हो रहा है ना, कुछ काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, डायनामिक्स की बात कर रहे हैं,
वेलोसिटी इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है. सो इन जनरल इफ आई राइट डाउन म्यू एप्सिलॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो इट्स ऑलरेडी वेलोसिटी. सो ये वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है. सो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर कोई मूविंग सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी दैट देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेलोसिटी. सो यहाँ पे भी वही हो रहा है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली समथिंग व्हिच यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद व्हाटएवर न्यूटन्स लॉ आइडिया यू ऑलरेडी हैव. यस, इरेस्पेक्टिव ऑफ करेक्ट. तो ये कर लो, ये बताओ मेरे को कि इसका फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन कितना आ रहा है. एंड देन आई कैन टेक इट टू बी डेल डेल टी ऑफ म्यू, सॉरी, डेल क्रॉस एच, डेल बार क्रॉस एच बार, बिकॉज ये क्रॉस है और डेल बार है. सो डेल बार क्रॉस एच बार होता है, राइट. अभी डेल डॉट ई जीरो है बिकॉज इट्स डाइलेक्ट्रिक. सो ये माइनस डेल्टा स्क्वायर ई बार हो गया, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू. अभी हम लोग अगर पीछे जाएंगे, राइट, दिस रिलेशंस वी हैव टू रिमेंबर इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम. डेल क्रॉस, या डेल डॉट ई वाला जीरो है, राइट. अभी डेल क्रॉस ई वाला क्या है, माइनस डेल डेल टी ऑफ म्यू एच, राइट. नहीं, डेल डॉट ई तो नहीं है यहाँ पे, कितना है, डेल क्रॉस एच है, सॉरी. सो डेल क्रॉस एच कितना है, डेल डी डेल टी, राइट, डेल डी डेल टी. सो हम लोग लिख सकते हैं डेल डी की जगह लिख सकते हैं म्यू एप्सिलॉन एप्सिलॉन ई. सो ये एप्सिलॉन बाहर ले लिया, दिस इज डेल डेल टी ले लिया. उसके बाद यहाँ पे हो गया डेल डेल टी ऑफ ई, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो उसका मतलब ये है कि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया डेल स्क्वायर ई, ये उस साइड चला गया तो ये हो गया माइनस, दिस विल बी म्यू एप्सिलॉन एंड देन दिस विल बी डेल स्क्वायर ई डेल टी स्क्वायर. फिर से क्या मिल रहा है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. और अगर हम लोगों ने किया है वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन, सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विल हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्यूशन. एंड इफ यू कैन राइट डाउन द सोल्यूशन, जो हम लोग करेंगे कल, we can actually find out more information about that particular wave, right. So हालांकि हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और we can also write it down as okay, del square E minus 1 by V square into del square E del T square. So ये काफ़ी लंबा टॉपिक है and there will be a lot of sub topics here to remember. So I suggest all of you just continue marking the equations. Whatever numbers I'm putting in, you should also put the same number so that we are not confused. ठीक है, तो आप लोग अपना नंबर लगाओगे तो फिर confusion होगा. So this is number A. Let me just write it down clearly. ये तो नहीं चाहिए मेरे को, ये हटा देते हैं अभी. ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही था, ये तो नोट पे था ना. So this is number A. इसको A मार्क कर दो और उसको B मार्क करो. And then we are going to continue from here for the next class to understand it better. अभी understand it better का मतलब क्या है कि we have got a second order